Most welcome to my study Pathshala. Today's topic is about the plant kingdom, chapter 3rd plus 1 biology class. And इससे पहले हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं, द लिविंग वर्ड एंड द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, एंड दिस इज इट्स थर्ड चैप्टर, प्लांट किंगडम. ओके, एंड इसमें हम जानेंगे एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स के बारे में. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. Plants are the eukaryotes that comprises the kingdom Plantae. They are predominantly photosynthetic. Okay, they क्या होते हैं? Predominantly photosynthetic होते हैं. This means that they obtain their energy from the sunlight. Sunlight से energy अपनी obtain करते हैं using chloroplast derived from the endosmosis. Okay, this is very important line, so underline it. With cyanobacteria to produce sugars from carbon dioxide and water using the green pigment chlorophyll. Okay, most plants are multicellular except for some green algae. कुछ एक प्लांट्स मल्टीसेलुलर होते हैं ग्रीन एल्गीज को छोड़ के. सच अ क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट्स वाज गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो अंडरलाइन इट. ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं कि जो क्लासिफिकेशन फ्लावरिंग प्लांट की है ये 2 साइंटिस्ट ने दी थी, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर. At present, phylogenetic classification style based on evolutionary relationship between the various organisms are acceptable. And the first we have algae. We will study about it. Algae are chlorophyll bearing simple thalloid autotrophic and largely aquatic बोथ फ्रेश वाटर एंड मरीन ऑर्गेनिजम्स. कैसे होते हैं एल्गी? क्लोरोफिल बियरिंग है, ये सिंपल थैलॉइड है, ऑटोट्रॉफिक हैं और लार्जली एक्वेटिक हैं. किसमें पाए जाते हैं? बोथ फ्रेश एंड मरीन वाटर में ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, दे अकर इन अ वेराइटी ऑफ अदर हैबिटेट्स, मॉइस्ट स्टोन्स, सॉइल्स एंड वुड. मॉइस्ट प्लेसेस में, स्टोन्स में, सॉइल्स में एंड वुड में प्रेजेंट होते हैं. Some of them also occurs in associated with fungi like lichens and animals. Example, sloth bear. Okay. After that, we have form size of algae is highly variable. ठीक है, जो इनका साइज होता है highly variable होता है. The algae reproduce by vegetative, asexual and sexual method. ठीक है, algae कैसे रिप्रोड्यूस होगी? वेजिटेटिव, asexually and sexually. कैसे होगी इसका मैंने एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाया है. सो थ्रू दिस चार्ट यू कैन लर्न द वेजिटेटिव. देखिए, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगी. ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू अ थैलेट. दिस इज ईच. ओके, सी. Each fragment develop into a thallus. Asexual reproduction is by the production of different type of spores. The most common being is zoospore. ठीक है, different type of spores से ये production होगी इसकी. जो common spore है वो है zoospore. They are flagellated, motile and on germination gives rise to new plant. और germination क्या करती है? नया plant एक rise करती है. And sexual reproduction takes place through fusion of 2 gamete. 2 gamete के fusion से होती है. They can be flagellated and similar in size as in Urothrax. ठीक है, पिक्चराइज करके मैं आपको बताऊंगी इसका कि किस तरह से होती है. एज नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन मोटाइल बट सिमिलर टू साइज एज इन स्पायरोगायरा, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं. सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज आइसोगैमस. दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज आइसोगैमस. सो दिस इज ऑल अबाउट वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल. मीन्स आफ्टर दैट द फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स डिसिमिलर इन साइज. तो फ्यूजन जो 2 गैमेट का होगा वो डिसिमिलर होगा साइज में. Fusion between one large non-motile static female gamete and a smaller motile male gamete is termed as oogamous. इसका एग्जाम्पल क्या है? Volvox and Fucus. Algae are useful to man in a variety of ways. ठीक है, किस किस तरह से यूजफुल है? Half of the total carbon dioxide fixation on Earth is carried out by a algae through photosynthesis. Half of the जो total carbon dioxide fixation है Earth की, वो कौन कैरी करता है? algae. किसके द्वारा? photosynthesis के द्वारा. Being photosynthetic, they increase the level of dissolved oxygen in their immediate environment. उनके photosynthetic मतलब कि एक फंक्शन के कारण वो इंक्रीज करते हैं किसका लेवल? ऑक्सीजन का लेवल in their immediate environment. They are of paramount importance as primary processes of energy rich compounds which form the basis of the food cycle of all aquatic animals. ठीक है, इसमें भी ये हेल्पफुल है. ऑल एक्वेटिक एनिमल्स के फूड साइकिल में ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं. Many species of Porifera, Laminaria and Sargassums are among the 70 species of the marine algae used as a food. ठीक है, ये
agar, one of the commercial product obtained from the Gelidium and Gracilaria, are used to grow microbes and in preparation of ice creams and jellies. Okay. Agar is a popular vegetarian and a vegan substitute for gelatin, known for its ability to gel, stabilize, and thicken food, used in desserts, jellies, and this comes in different forms like agar powder and agar jellies, etc. And it is full vegetarian. ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप नोट डाउन कर लेना. द एल्गी आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लासेस. ओके, इनको 3 मेन क्लासेस में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी. फर्स्टली वी हैव क्लोरोफाइसी. द मेंबर ऑफ दिस क्लास आर कॉमनली कॉल्ड एज ग्रीन एल्गी. इनको ग्रीन एल्गी कहा जाता है. एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स आर इट्स प्लांट बॉडी इज यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस, usually grass green due to the dominance of pigments chlorophyll A and B. इनमें chlorophyll A और B पाए जाते हैं. Chloroplast may be discoid, plate-like, cup-shaped, spiral or ribbon-shaped in different species. And some algae may stored food in the form of oil droplets. कुछ एक algae ऐसे भी होते हैं जो oil droplets के फॉर्म में फूड को स्टोर करते हैं. Have a rigid cell wall made of an inner layer of cellulose and an outer layer of pectose. ठीक है, एक rigid cell wall होती है इनकी जो किससे बनी होती है, इनर लेयर सेलुलोज से एंड आउटर वॉल पेक्टोज से. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगी इनमें, टेक्स प्लेस बाय द फ्रेगमेंटेशन, बाय द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स. And asexual reproduction is by flagellated zoospores produced in zoosporangium. And the sexual reproduction shows considerable variation in the type of formation of sex cells, and it may be isogamous. Isogamous होगी, anisogamous होगी और oogamous होगी. And its examples are green algae like Chlamydomonas, Volvox, Blothrix, and Spirogyra and Shera, etc. So these are the characteristics of chlorophycy and I have elaborated this through pictures also. The second class we have Phenophyceae. It is brown algae found primarily in marine habitat. Marine habitat में पाए जाने वाले brown algae हैं ये, and they show great variation in size and form. और size और form में great variation show करते हैं. Here is their characteristics. They possess chlorophyll A and C, carotenoids and xanthophylls. It is very important, आपने इसको याद रखना है. Xanthophil pigment, फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट इन दैम. ठीक है, इनमें फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट होता है. देयरफॉर कलर वेरी इन ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेप्स ऑफ ब्राउन. फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट होने के कारण क्या होता है, इनका जो कलर होता है वो वेरी करता है इनटू ऑलिव ग्रीन और बहुत सी अदर शेड्स ऑफ ब्राउन कलर में. ठीक है, फूड इज स्टोर्ड एज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. फूड स्टोर होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के रूप में, विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरिया और मेनेटोल. आफ्टर दैट इनमें जो वेजिटेटिव सेल्स होते हैं हैव अ सेलुलोजिक वॉल. उनमें सेलुलोजिक वॉल होती है, यूजुअली कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाय जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्गिन, जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं हुज बॉडी इनडिफ्रेंशिएटेड इनटू अ होल्ड फास्ट स्टाइप एंड फ्रॉन्ड. ये भी पिक्चर में आपको दिखा रही हूँ मैं साथ साथ में. इनमें जो रिप्रोडक्शन होती है अकर्स थ्रू द वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल ज़ूओस्पोर्स एंड सेक्सुअल आइसोगैमी, एनिसोगैमी एंड oogammy. And the common forms are Ectocarpus, Gassam and Fucus और एक थोड़ा बर्ड्स पीछे से तंग कर रहे हैं, तो इसको आप इग्नोर करें. एंड द थर्ड लास्ट वी हैव रोडोफाइसी. द मेंबर ऑफ दिस क्लास इज नोन एज रेड एल्गी. इस क्लास के जो मेंबर हैं उनको रेड एल्गी बोला जाता है. क्यों बोला जाता है? बिकॉज ऑफ द प्रीडोमिनेंस ऑफ रेड पिगमेंट. क्योंकि उनमें जो प्रीडोमिनेंस रेड पिगमेंट पाई जाती है R-फाइकोसिरिथ्रिन के कारण, इसी के कारण उनको जो है रेड एल्गी कहा जाता है.
एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स आर एब्सेंस ऑफ फ्लैजिलेटेड सेल्स, ठीक है, फ्लैजिलेटेड सेल्स में एब्सेंट होते हैं, स्टोरेज ऑफ फूड एज अ फ्लोरिडे एंड स्टार्च, ठीक है, स्टोरेज कैसी होती है फूड की इनमें फ्लोरिडे और स्टार्च के रूप में। सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज, सेल वॉल कैसी बनी होती है, सेलुलोज से, पेक्टिन से एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर्स से। एंड प्रीडोमिनेटली मेराइन होते हैं ये, मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं, रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव एसेक्सुअल एंड oogamous सेक्सुअल मीन्स। ये था हमारा एल्गी के बारे में। 3 इसकी जो क्लासेस हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट ब्रायोफाइट्स एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे। और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए माय स्टडी पाठशाला को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं, बता सकते हैं। और हर संडे मैं हर एक चैप्टर के MCQs डालती रहती हूँ, नीट रिलेटेड एंड आपके एग्जाम से रिलेटेड, तो उनको भी आप ज़रूर पढ़ा कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।